Good afternoon to everyone. Today we are going to start the international marketing orientation, the third lecture of the unit 3. First of all, we should know what is the marketing. Marketing, the management process through which goods and services move from producer or seller to the customer, is called the marketing. Marketing क्या है? Marketing वो है जिसमें गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, सेलर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर तक जब पहुंचती है तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केटिंग. इट इंक्लूड्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स कॉल्ड द 4 P's ऑफ मार्केटिंग. 4 P's, व्हाट आर द 4 P's? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन स्ट्रेटजी. Here we are talking only about the 4 P's of the marketing. Since we have to talk about the international marketing scenario, so we will talk about the international marketing. International marketing is the marketing across the national frontiers. It refers to the strategy, process and implementation of the marketing activities in the international arena. International marketing may be defined as an activity related to the sale of goods and services of one country in the other, subject to the rules and regulations framed by the countries concerned. Global marketing is concerned with integrated and standardizing marketing actions across a number of geographic markets. This was definition given by the Philip Kotler, and Kaitiora defined the international marketing as the performance of business activity that direct and flow of goods and services to consumers and users in more than one nation. This definition we have already discussed in lecture 1 and lecture 2. So we are not going here in the details of this marketing definition and marketing strategy or marketing scenario of the international business. What is the global marketing? Global marketing refers to marketing activities coordinated and integrated across multiple country markets in order to meet global objectives. Global marketing focus on global market opportunities and threats. The main difference between the regular marketing and global marketing is the scope of activities, because global marketing occurs in markets outside the organizational home country. Why? What are the reasons for global marketing? Why we have the global marketing here? Number 1 is the growth of the company. Global marketing, why it is required the global marketing? For the global marketing, growth is the prime concern for the global marketing. Why companies go for the global marketing? The prime concern is the growth of the company or growth of the firm or industry. It access to the new markets and access to the resources. When जब एक कंपनी है, एक MNC है, नए मार्केट को इंटर करती है, मार्केट जब होम कंट्री का मार्केट सैचुरेट हो जाता है तो नए मार्केट, नए एवेन्यूज, न्यू कंज्यूमर्स, नए बेस की सर्च में नए मार्केट की ग्रोथ के लिए वो ग्लोबल मार्केट की तरफ मूव करता है. और चूंकि जब नए एवेन्यूज और मार्केट का एक्सपेंशन करेगी कंपनी, तो प्रोडक्शन के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए या स्टोरेज के लिए या फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, इट विल रिक्वायर मोर रिसोर्सेज. आप सेल्स की ही बात कर लीजिए या मार्केटिंग की ही बात कर लीजिए. फॉर दैट मार्केटिंग पर्पस यू विल रिक्वायर ट्रेंड मार्केटिंग पर्सनल एट द लोकल लेवल, जो वहां की लैंग्वेज, वहां की कल्चर, वहां की नीड और वांट्स को वहां समझ सके और आपके प्रोडक्ट को उस वहां की नीड्स, वांट्स और कल्चर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हुए आपके प्रमोशन को, आपकी कंपनी के मार्केट को एक्सपेंड कर सके. तो द ट्रेंड रिसोर्स और स्किल्ड रिसोर्स जिसको हम कहते हैं, स्किल्ड रिसोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द growth of the company or growth of the firm. Second is the survival against competitors with lower cost due to increased access to the resources. कई बार ऐसा होता है कि कंपटीटर्स की वजह से मार्केट सैचुरेट हो जाता है, या कई बार
कंपनीज जब होम कंट्री में या जिस कंट्री में वो ऑपरेशनल है उस कंट्री में कंपटीटर से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू कॉस्ट, ड्यू टू द प्रॉफिट, ड्यू टू द साइज ऑफ द फर्म, कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से कंपनीज कंपटीशन नहीं दे पा रही हैं, कंपीट नहीं कर पा रही हैं, तो वो नए एवेन्यूज की तलाश में ग्लोबल मार्केट की तरफ रुख करती है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब जियो मार्केट में एंटर किया तो यहाँ पर बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज थी जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बहुत सारे बीएसएनएल तो मान लीजिए अभी भी एग्जिस्टिंग है, और बहुत सारी कंपनीज थी। रिलायंस खुद ही था, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का। तो बहुत सारी फर्म ने जो जियो के लो कॉस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाए और उनसे कम्पीट नहीं कर पाए, उन्होंने मार्केट को छोड़ दिया। या जैसे आप वोडाफोन का एग्जांपल ले लीजिए, वोडाफोन इज सर्चिंग फॉर द न्यू मार्केट एट द ग्लोबल लेवल एंड दे आर प्लानिंग टू लीव द इंडियन मार्केट because they are unable to compete with the Jio platform, Jio's low cost strategy। तो जियो का जो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है उसकी वजह से वोडाफोन गवर्नमेंट नोट नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट का की सहमत नहीं मिल रही, अदरवाइज वो मार्केट को छोड़ने को तैयार बैठे हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, सर्वाइवल, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। जब मार्केट में आप एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं कंप्यूटर से, तो आप नए एवेन्यूज की तलाश में भी इंटरनेशनल मार्केट की तरफ रुख करते हैं, नए मार्केट की तरफ रुख करते हैं। क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि कई बार कोलैबोरेशंस होते हैं तो टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग होती है। कई बार कंपटीशन की वजह से कंपनीज आर bound to upgrade their product quality and size and color according to the choice of the customer। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग कंपनी को क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ता है। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्टेब्लिश करना पड़ता है कंपनीज को, और बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड द कंज्यूमर is also a creating the value for the customers in the international market, to expand in the international market। examples of global markets, देखिए ग्लोबल मार्केट में कौन कौन से कंपनीज हैं। कोका कोला जो यूएसए की है, वो आपके इंडिया में किस तरह से एक्सपैंड करी हुई है कोका कोला, एंड यू कैन टेक द पेप्सिको आल्सो। फिलिप मॉरिस, फिलिप्स कंपनी है आजकल, पहले तो रेडियो में आप देखते थे फिलिप कंपनी, फिलिप्स है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की सप्लाई करने में फिलिप्स अच्छी है। फिलिप मॉरिस, मैकडोनल्ड्स, यू आल्सो नो द मैकडोनल्ड्स। टोयोटा जापान की कंपनी है, फोर्ड मोटर यूएसए की कंपनी है, यूनिलीवर इज फ्रॉम द यूके एंड नीदरलैंड, जिलेट ब्लेड सेविंग ब्लेड से लेकर के और बहुत सारी चीजों में जिलेट सेविंग फोम, मेंस एंड वीमेंस कॉस्मेटिक में कह सकते हैं जिलेट इज नंबर 1 इन एफएमसीजी प्रोडक्ट, यू कैन से। आईबीएम यूएसए की कंपनी है। तो these were the companies which were operational at the international level। Now international marketing orientation, which is the exact topic of the today। International marketing orientation is, it is the process of extending the organization's local strategy through the identification of target market and implementing positioning strategy to get success in the international markets। Different attitude towards company involvement with the international marketing process are called international marketing orientations। It is also known as EPRG framework। EPRG framework मतलब किसी भी कंपनी को जब वो एक्सपैंड करती है, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपैंड करती है, मार्केट को कैप्चर करती है, तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाती है और क्या क्या उसके फ्रेमवर्क होते हैं, कौन कौन सा मॉडल होता है जिसके तहत वो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं। तो दैट इज नोन एज द EPRG मॉडल। EPRG स्टैंड्स फॉर द इथोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। 4 इसमें वर्ड्स हैं। E फॉर स्टैंड्स फॉर इथोसेंट्रिक, इथनोसेंट्रिक,
P stands for polycentric, R stands for regiocentric and G stands for geocentric. अब इसके बाद हम लोग इसको वन बाय वन करके we will discuss it. So then it is a framework created by Howard V. Perlmutter and Wind and Douglas in 1969. It is कहीं पर sometime it is found at the 1973. So then don't go in the dispute. It was created by this framework was created by Howard V. Perlmutter and Wind Douglas in 1969 or 73. It doesn't matter. It is designed to be used in an internationalization process of business and mainly addresses how companies view international management orientations. According to the APRG framework or the APRG model, जो भी आप कहना चाहें APRG framework or model, there are 4 management approaches that an organization can take to get more involved in international business substantially. The APRG framework suggests that companies must decide which approach is most suitable for achieving successful results in countries abroad. For this reason, the APRG framework can be a useful tool to utilize if a company does not know yet how to manage business activities between companies in the local country and a host country. The APRG framework is additionally useful for making strategic decisions. देखिए इसको अगर हम एक प्रिसाइज करना चाहें तो APRG फ्रेमवर्क ये डिसाइड करता है कि जब आप दो जगहों पर काम मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में जब आप इंटरनेशनल मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में इंटर करते हैं तो देन यू हैव द चॉइस कि आप अपने होस्ट होम कंट्री को या होस्ट कंट्री को मेन सेंटर बना लें, वो उसका आप उसको हेड ऑफिस बना लें और आप अलग अलग कंट्रीज में आप काम करना चाहेंगे, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सेंटर पे काम सेंटर क्रिएट करके काम करना चाहेंगे, या फिर आप अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हेड ऑफिस बनाएंगे, यानी अपने कंपनी को अलग अलग नेशंस में अलग अलग सिनेरियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे जब आप गूगल की बात करते हैं तो although Google is from an American company, एक अमेरिकन कंपनी है और it is operating in all over the world, but it is operating at the different name, such as Google India is the different and Google Inc. आप जब बात करते हैं तो google.co.in बात करते हैं, यूके में चले जाइए तो .uk हो जाता है, और जब आप चाइना में बात करते हैं तो .ch हो जाता है। दिस इज द डिफरेंट। जबकि फेसबुक की बात आप कर लीजिए, फेसबुक इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अमेरिका, ही हैज मेड हिमसेल्फ एस्टैब्लिश्ड इन द अमेरिका, उसने हेड ऑफिस अपना अमेरिका में बना रखा एंड फ्रॉम दैट प्लेस ही इज ऑपरेटिंग इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसने क्या किया है, अपना पूरा हब जो है वो अमेरिका को बना रखा है। तो किस फ्रेमवर्क पे आप काम करना चाहते हैं कि अलग अलग कंट्री में अपने कंपनी के वर्क को अलग अलग कंट्री के कल्चर, जेंडर या नीड या रिक्वायरमेंट के अनुसार वहां का लोकल लेवल पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहते हैं, अलग अलग अपने कंपनी को अलग अलग सेगमेंट में बांट देना चाहते हैं, कुल मिला के आप कह सकते हैं सेगमेंटेशन करना चाहते हैं, or you want to work as a single venture in all over the globalized world। तो आप एक अकेली फर्म को आप ग्लोबलाइज्ड फर्म के रूप में काम करवाना चाहते हैं, या आप स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं, या अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं। दिस APRG फ्रेमवर्क डिस्कस अबाउट दैट। अगर अलग अलग आप करना चाहते हैं तो कौन सा फ्रेमवर्क काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, तो इसी को APRG फ्रेमवर्क में बात करते हैं। जैसे अगर आपने सिंगल किया, हमने फेसबुक का एग्जांपल लिया, ट्विटर का एग्जांपल लिया कि इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई जो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया पूरे होल वर्ल्ड पर, पूरे होल सिनेरियो पर, पूरे होल ग्लोब में, जो जहां पर भी उनकी कंपनी ऑपरेट कर रही है उस जगह पर उन्होंने वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, वही पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रखी है जो उन्होंने एक जगह कर रखी है। लेकिन अगर आप अलग अलग बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कंज्यूमर जैसे मैकडोनाल्ड की बात कर लीजिए, मैकडोनाल्ड का जो स्ट्रेटजी अमेरिका में है वो स्ट्रेटजी यहाँ के कल्चर में, इंडियन कल्चर में फॉलो नहीं हो सकता। वो स्ट्रेटजी आपका
चाइनीज कल्चर में फॉलो नहीं हो सकता, वो स्ट्रेटजी जापानीज कल्चर में फॉलो नहीं हो सकता। इंडियन कल्चर इज डिफरेंट, जापानी कल्चर इज डिफरेंट, यूरोपियन कल्चर इज डिफरेंट एंड अमेरिकन कल्चर इज हैविंग अ डिफरेंट सिनेरियो। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे? तो इसी चारों को आप इथनोसेंट्रिक, पोलोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, कौन सी आप स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क अपनाना चाहते हैं, दिस वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन। तो एक एक करके हम लोग इसकी डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज द इथनोसेंट्रिक? इथनोसेंट्रिक का मतलब है तो होम कंट्री इज सुपीरियर, सी सिमिलैरिटी इन फॉरेन कंट्रीज। मतलब इथनोसेंट्रिक में जैसे होम कंट्री में एक पॉलिसी फ्रेमवर्क, हमने एक स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी तय कर ली, वही स्ट्रेटजी हमने हर जगह पर, जहां जहां पर हमारी कंपनी या जहां जहां पर हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं, द सेम स्ट्रेटजी इज बीइंग फॉलोड बाय ऑल ओवर द ग्लोब। सब जगह पर वही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। पॉलीसेंट्रिक मींस हर कंट्री की अपनी यूनिकनेस होती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जापान हैज द डिफरेंट कल्चर, इंडिया इज हैविंग द डिफरेंट कल्चर, चाइना इज हैविंग द डिफरेंट कल्चर, पाकिस्तान इज हैविंग द डिफरेंट कल्चर एंड यूएस इज हैविंग द डिफरेंट कल्चर। तो जब डिफरेंट कल्चर को अलग अलग कंट्री में अलग अलग कल्चर को ध्यान में रख करके स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाती है, तो दैट इज नोन एज द पॉलीसेंट्रिक अप्रोच ऑफ पॉलीसेंट्रिक फ्रेमवर्क। रीजियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जैसे हम रीजनल में डिवाइड करते हैं, जैसे आप कुछ चीजों को क्लब कर देते हैं। जैसे आप एक बात कह सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन की आप एग्जांपल ले लीजिए। यूरोपीय यूनियन में जितने देश हैं वो यूरोपियन कंट्री के हैं। अब यूरोपियन कंट्री में ऑलमोस्ट क्या है, कल्चर या आप कुछ चीजों को की सिमिलरिटी उनके पास है। जैसे आप एटमॉस्फेयर की सिमिलरिटी ले लीजिए या एनवायरनमेंट की सिमिलरिटी ले लीजिए। जब ठंडी पड़ेगी तो वहां सब ठंडी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया का ही बात कर लीजिए कि इंडिया में साउथ में जिस समय गर्मी, एकदम भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, उस समय नॉर्थ में एकदम ठंडी पड़ रही होती है, हिल स्टेशन पे एकदम ठंडी पड़ रही होती है। तो सेम स्ट्रेटजी कैन नॉट फॉलो अप्लाई एट तमिलनाडु एंड एट द सेम टाइम इन द हिमाचल प्रदेश। लेकिन आप ऐसा तो कर सकते हैं ना कि एक फॉर्मुलेशन कर लें साफ का, जैसे सार्क कर लीजिए। साउथ एशिया में कौन कौन से देश हैं? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान और मालदीव। अब इतने देशों का एक आपने ग्रुप बना रखा है, तो इसमें कुछ सिमिलरिटी तो होगी। कल्चर की सिमिलरिटी हो सकती है, एटमॉस्फेयर की सिमिलरिटी हो सकती है, जियोग्राफिक सिमिलरिटी हो सकती है, ट्रेडिशन से एक हो सकते हैं। तो जब आप एक क्लब कर देते हैं, नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया जैसे बना हुआ था, या ब्रिक बना हुआ, ब्राजील, रशिया, चाइना एंड इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन ये भी बना है, यूरोपीय यूनियन। जब इस तरह के रीजन्स में हम बांट देते हैं कि मार्केट को एक डिवाइड कर देते हैं कि यूरोपीय यूनियन के लिए हमारा अलग स्ट्रेटजी होगा, सार्क के लिए हमारी अलग स्ट्रेटजी होगी, नाफ्ता के आसियान कंट्रीज के लिए हमारी अलग स्ट्रेटजी होगी, ओपेक कंट्री के लिए या जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके लिए अलग हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो देन इट इज नोन एज द रीजियोसेंट्रिक। रीजियो का मतलब रीजनल से होता है, रीजनल मतलब एक क्षेत्र को हमने एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करके उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग हमने इंप्लीमेंट करना है। अगला होता है जियोसेंट्रिक। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम जियोग्राफिकल एरिया में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अमेरिकन, अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम साउथ एशिया में जाएंगे तो एक कंट्री को तो टच करेंगे नहीं। अब साउथ एशिया में जितने भी वहां के आसपास के पड़ोस के देश हैं, वो ऑलमोस्ट उसी तरह का वेदर होगा वहां पर, उसी तरह के लोग रहन सहन होगा, उसी तरह का थोड़ा सा लोग का पैटर्न होगा। तो हम उस तरह के एक ज्योग्राफिक एरिया में बांट देते हैं। जैसे अगर हम एक इंटरनल एग्जांपल लें, इंटरनल की बात कर लीजिए। पूर्वोत्तर के राज्य कहते हैं तो पूर्वोत्तर का राज्य का मतलब सिर्फ असम नहीं होता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, कई स्टेट होते हैं। मतलब पूर्वोत्तर के राज्य ये हो गए। तो ये क्या हुआ, एक जियोसेंट्रिक हो गया। हमने क्या किया, नॉर्थ हिल स्टेट्स कर दिया। नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया हमने कहा तो नॉर्थ इंडिया का मतलब ये थोड़ी है कि नॉर्थ इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर आ गया। नॉर्थ इंडिया का मतलब हुआ यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये नॉर्थ इंडिया है। तो इस तरह इसी तरह नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर डिवाइड करते हैं। साउथ एशियन सार्क कंट्रीज हैं, साउथ एशियन रीजन पर
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आसियान है, आसियान देशों का इसी तरह से संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यूरोपीय यूनियन है, और उसी तरह से जब हम जियोग्राफी में डिवाइड करके स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं जियोसेंट्रिक। चलिए एक एक करके हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, in this orientation home country is superior to others, it sees only similarity in other countries, assumes products and practices that succeed at home will be successful everywhere। मतलब ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जो होम कंट्री में सक्सेसफुल है वो कहीं पर, लेकिन ऐसा होता नहीं। देखिए एग्जांपल ले लीजिए, जब शुरू में यही लैपटॉप आया था तो या कंप्यूटर आया था तो ये वेस्टर्न यूरोप, ये यूरोपियन कंट्रीज में बना था, अमेरिकन कंट्रीज में बना था, तो ये वहां के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बना था। लेकिन जब यहाँ आया तो यहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो उसको वहां पर क्रिएट करना पड़ता था, एसी बनानी पड़ती थी, साफ ताले के अंदर एकदम बिल्कुल एसी, डस्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो स्ट्रेटजी आप वहां बना रहे हैं वही स्ट्रेटजी आप यहाँ फॉर्मुलेट कर लेंगे। कई बार एजुकेशन लेवल डिफरेंट होता है, वो टेक्नोलॉजी लोग एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो इथनोसेंट्रिक में ये मान लिया जाता है कि जो स्ट्रेटजी अमेरिका में इंप्लीमेंट हो रही है, जैसे फेसबुक है, जो स्ट्रेटजी द स्ट्रेटजी व्हिच इज अप्लाइंग इन अमेरिका, दैट स्ट्रेटजी इज अप्लाइंग इन इंडिया, एंड दैट स्ट्रेटजी इज अप्लाइंग एज वेल एज इन द चाइना। टिकटॉक था, टिकटॉक ने वही स्ट्रेटजी इंडिया के लिए अपनाई, वही स्ट्रेटजी अमेरिका के लिए अपनाई, एंड एट बोथ प्लेसेस इट इज बैंड। तो दैट इज द रीजन इथनोसेंट्रिक में एक स्ट्रेटजी जो होम कंट्री में फॉलो की जाती है, दैट स्ट्रेटजी इज फॉलोड एट एवरीवेयर। मैनेजमेंट फोकस इज टू डू इन होस्ट कंट्री व्हाट इज डन इन द होम कंट्री, समटाइम्स कॉल्ड एन इंटरनेशनल कंपनी। ये इंटरनेशनल कंपनी में यही होता है। अब स्वाभाविक है कुछ चीजों में हम सेम स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, लेकिन एट द रिक्वायरमेंट समटाइम रिक्वायरमेंट डिफर्स, लीड्स टू स्टैंडर्डाइज अप्रोच। इसको हम स्टैंडर्डाइज अप्रोच कर दिया, हमने एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली कि हमारी यही स्ट्रेटजी इंडिया में भी चलेगी, यही स्ट्रेटजी अमेरिका में भी चलेगी, यही चाइना में भी चलेगी, और यही हमारी यूरोप में, जैसे टाटा की स्ट्रेटजी, टाटा की एचआर पॉलिसी। अब कई बार लोकलाइज्ड लेवल पर चेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर उसने अपनी एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली है तो दैट स्ट्रेटजी इज बीइंग फॉलोड एज एवरीवेयर, देन इट इज नोन एज इथनोसेंट्रिक। In this approach of the EPRG framework, the company in a local country that wants to do business overseas does not put in much effort to do research abroad about the host country's market। यानी वो दूसरे कंट्री के मार्केट में ज्यादा रिसर्च नहीं करती है। जो अप्रोच उसने होम कंट्री में अपनाया है वही अप्रोच उस सेम कंट्री में जाकर के अप्लाई कर देती है। इसमें आपको बता दें फेलियर के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। सम टाइम कंपनीज स्ट्रेटजी फेल्स। Instead, most of the market research is executed in the headquarters in the local country. With this approach, the company seeks for markets abroad that share the same characteristics as the local market, so that the marketing strategy does not have to be adopted. More specifically, the ethnocentric approach uses the same marketing strategies that are created by local personnel and further utilized multiple countries. सेकेंड इज पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। हम अभी आपको डिस्कस करते समय ये मैंने बताया था, पॉलीसेंट्रिक में हर कंट्री एक यूनिक कंट्री है, हर कंट्री का कल्चर अलग है, हर कंट्री के ट्रेडिशंस अलग हैं, हर कंट्री के नीड्स एंड वांट्स अलग हैं, हर कंट्री का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है, हर कंट्री का फैशन अलग है। सो दैट कंट्री इज यूनिक इन इटसेल्फ। तो हर कंट्री के लिए जब अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई जाती है, then it is known as the polycentric orientation. Each country is unique, leads to a localized or adaptation approach that assumes products must be adopted to local market conditions. Company operates differently in each host country based on that situation, sometimes called a multinational company. आप देखिए इथनोसेंट्रिक में हम इंटरनेशनल कंपनी कहते हैं, जबकि पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन में हम इसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। In the polycentric approach of the EPRG framework is the opposite of the ethnocentric approach.
A company that utilizes this approach carefully consider different markets abroad to identify host countries that could potentially offer the most benefits. It means that if a company has a local headquarters and a separate office overseas in a host country that manages the operations in that or more countries, that marketing strategy are locally created and implemented based on the local needs. हमने यही आपसे बताया था कि कोका कोला को ही ले लीजिए, कोका कोला इंडिया में जो स्ट्रेटजी अपना रही है, दैट स्ट्रेटजी इज ओनली फॉर इंडिया, दैट इज on the that strategy has been formulated at the local level, seeing the atmosphere, needs, fashion and requirements of the local level. So this is a unique strategy for India that will not be implemented in America, which is the host for the कोका कोला. तो कोका कोला का वही स्ट्रेटजी जो अमेरिका में फॉलो किया गया था, वो सेम स्ट्रेटजी यहाँ नहीं फॉलो किया जाएगा. मैकडोनल्ड्स you can take the other example, PepsiCo you can take the other example. There are so many examples which you can take. Businesses that utilize the polycentric approach of the APRG framework strongly believe that every market has its differences. For this reason, these types of companies implement different marketing strategies for each market. It is therefore easier to make strategic decision based on current cultural differences and political differences. हमने यही चीज आपसे बताई कि हर कंट्री की अपनी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट होती है, पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, लोकल लेवल के सेंटिमेंट्स होते हैं. जैसे अभी आप देख लीजिए, सेंटिमेंट्स को ही देख लीजिए, इंडिया और चाइना में एक विवाद हुआ, सीमा को लेकर के विवाद हुआ, बॉर्डर पर विवाद हुआ और 250 ऐप बैन कर दिए गए. टिकटॉक जो जिसका सबसे बड़ा मार्केट बेस या जिसकी सबसे बड़ी कंज्यूमर बेस इंडिया में था, उसको बैन कर दिया गया. तो ही हैज टू लूज द मार्केट, होल मार्केट. तो अगर वो सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेगा हर जगह पर, तो दैट स्ट्रेटजी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. सो polycentric approach is the better approach. Regiocentric orientation. Region becomes the relevant geographic unit rather than by country. For example, the NAFTA or European Union market. Some companies serve market on a regional basis. As you can know, European Union, NAFTA, Gulf Cooperation Council, जैसे हमने आपको एग्जांपल शुरू में बताया था. In a regiocentric approach of the APRG framework, businesses create and implement internationalization strategies for specific regions. Companies that utilize this type of approach use this for the area in which the local business is operated. It can also be that an organization utilizes 2 kinds of approaches. An organization can use a regiocentric approach for the business in the region in which it operates, and the same organization can use a polycentric or ethnocentric approach to do business in countries outside the region. जैसे हम आपकी एग्जांपल लें, मान लीजिए टाटा है, टाटा स्टील है, टाटा या टाटा ऑटोमोबाइल है, या हुंडई की बात कर लीजिए, हुंडई है एक कंपनी. हुंडई is having the technological approach or strategy at the ethnocentric level. सारी उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स साउथ कोरिया में होती है, सारी उसकी इनोवेशन साउथ कोरिया में होता है. But as it is required to the marketing design of the car and design of the design of the automobile sector, तो ये क्या करता है, तुरंत उसी समय ये रीजियोसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक अप्रोच अपना लेता है. मार्केटिंग को जैसे ही बात आती है, फैशन की बात जहां तक आती है, रिक्वायरमेंट की बात जहां तक आती है, आप जैसे देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारे यहाँ, अच्छा कई बार रीजियोसेंट्रिक अप्रोच होगा या पॉलीसेंट्रिक अप्रोच होगा, ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल डिसीजंस पर भी, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर भी. जैसे हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल लिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप यूरोपीय यूनियन में चले जाइए, वहां एनवायरनमेंट का BS6 नॉर्म लागू है, अपने यहाँ BS4 नॉर्म लागू है. अपने यहाँ राइट साइड में स्टीयरिंग होती है, लेफ्ट में हम चलते हैं,
लेफ्ट सेंटर होकर के, हम लेफ्ट सेंट्रिक होकर के चलते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में हम राइट सेंट्रिक होकर के चलते हैं, वहां स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में होता है। तो कई बार due to change of the traditions, due to change of the political reasons, due to change in the approaches, that is on the political level, rules, regulation, laws, तो कई बार कंपनी को कुछ मामलों में, कुछ चीजों में इथनोसेंट्रिक तो होती हैं, लेकिन मजबूरी में उनको रेशियोसेंट्रिक होना पड़ता है। पॉलीसेंट्रिक भी कई बार कंपनी को होना पड़ता है, मजबूरी में होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, सम कंपनीज यूज दिस अप्रोच फॉर नाफ्टा कंट्रीज व्हिच इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। ऑल कंट्रीज आर इन द सेम रीजन बट स्टिल हैव सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन नाफ्टा। हमने पहले ही बताया, जैसे आप इंडिया की बात कर लीजिए, इंडिया में जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया की है वो श्रीलंका की नहीं है। श्रीलंका की characteristics या traditions somehow are different from the Bangladesh, and India some traditions are different from the Pakistan, but some are, most of the traditions are, most of the things are similar with the India and Bangladesh and Sri Lanka. तो regiocentric एक अप्रोच बनाया भी जा सकता है, but sometime मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब ग्राउंड लेवल पर उतरती है तो कई बार थोड़ा सा ट्रेडिशंस को लेकर के या कस्टम्स को लेकर के या रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, वांट्स को लेकर के अप्रोच को बदलना भी पड़ता है। द सेम इम्प्लीज फॉर द बेनुलक्स। बेनुलक्स कहते हैं बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लक्समबर्ग के एसोसिएशन को। द कंट्रीज आर इन द सेम रीजन बट बेल्जियम हैज डिफरेंट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स देन द नेदरलैंड्स एंड लक्समबर्ग। नाउ कमिंग ऑन द जियोसेंट्रिक ऑफ ओरिएंटेशन। Entire world is a potential market. It is also known as a global company. Retains and relationship with the headquarters country leads to combination of extension and adoption elements. A geocentric approach of the EPRG framework means that a business strongly believes that it is possible to utilize one type of strategy for all countries, regardless of the cultural differences. A geocentric company is one where the management looks at opportunities on a global scale. However, companies that use this approach attempt to create products or offer services in a way that best suit national and international customers. This means that instead of believing that their product or services is excellent and that it will sell in other markets, like in ethnocentric approach, these organizations proactively adopt their products and services that best meet the global needs. For example, KFC has a vegetarian thali and chana shakkar burger with chickpeas cater to vegetarian in India, and Viacom आप जानते हैं MTV channels branded accordingly as MTV India, MTV Korea, MTV China। यही हमने आपको शुरू में यही बताया था, जियो सेंट्रिक का मतलब है अलग अलग जगहों पर MTV इंडिया के नाम से, MTV is the same company operating at different level at the different name. So that is the thing which I was telling you. This was all. Thank you very much. तो ये this was all for today. Tomorrow morning we will discuss the segmentation of the market.